Swati2 and today into this video we're gonna do our part 3 of class 12th history NCERT chapter 1 bricks, beads and bones, the Harappan civilization. In case you haven't checked out part 1 and part 2 of this chapter, kindly visit the playlist that I recently created. So before starting our chapter, let me tell you that this year I started crash course of a 2-month. Into this 2-month crash course, I'll be completing your history and political science syllabus within only 2 months, and these lectures will be live. In fact, from 16th of August, I'm going to start my new batch. This is going to be batch 4. For joining crash course or for more info of a crash course, kindly text me on my WhatsApp number. Number is given in description box. You can also text me on my Instagram, otherwise Telegram. So this crash course is a paid course and from 16th of August we will just start it. आपको join करना है, जल्दी से मुझे text कीजिए क्योंकि अभी pre-registration इस course के लिए हो रहे हैं. Let's get started with this chapter. In our part 2 we completed up to 6 topic and that was trading beyond the continent कैसे हुआ करती थी और beyond the subcontinent कैसे हुआ करती थी. अब हम बात करेंगे seals, script and weight के बारे में. 7.1 is seals and sealings. To facilitate long distance communication ये जरूरी था कि seals का इस्तेमाल हो because if you are sending something to someone कुछ तो identity हो ना कि ये आपने भेजा है. दूसरा seals actually convey the identity of the sender. So as I said that कि अगर किसी ने कुछ आपको सामान भेजा है, if you are getting something and if you have ordered online, they ask you for an address, they ask you for whom you are asking for this. Main thing is अगर कोई आपको सामान भेज रहा है, there must be a kind of a seal जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चल सके. Besides this, if we will see that there were pictographic seals actually. Pictographic seals का मतलब है वहां पे उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो मोटिव इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसी सील्स जिसमें पिक्चर्स हो. सो लाइक वी गेट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हमें जो है उसमें ऑक्स की इमेजेस मिलती है. वी ऑल्सो गेट पिक्चर ऑफ अ फिश. सो दीज आर द थिंग्स जिससे पता चल जाता था कि हाँ भाई इस पर्सन ने ये सामान भेजा होगा. सेकेंड 7.2 एंड एग्निग्मेटिक स्क्रिप्ट, एक रहस्यमय स्क्रिप्ट. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन अगर हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो एवरेज भी मिलती है हमें, लॉन्गेस्ट भी मिलती है. देयर वर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जिसमें एक लाइन में ही 26 साइंस यूज किए गए थे एंड अगर टोटल किया जाए तो देयर वर 370 to 400 साइंस और जिनको आज तक डेसिफर नहीं किया गया है. फॉर इंस्टेंस आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग ऑन अ बोर्ड. So I just draw this. Now can you please tell me that what's the meaning of this? You don't know ना, मुझे भी नहीं पता. Like there were many signs used were into this script and जिनको decipher करने में आज भी historians लगे हुए हैं और कुछ ही decipher कर पाए हैं. Now written from right to left, you know that उर्दू को right to left लिखते हैं and यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, इसको right to left लिखा गया था. ये जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी that supposed to be right from here to here. Now motive was illiterate. Okay, so motive मतलब जिसमें एनिमल्स की इमेज हो टू रिकॉग्नाइज कि अगर कोई बिना पढ़ा लिखा इंसान भी वो प्रोडक्ट और वो सामान देख रहा है वो समझ जाए ये किसने भेजा है, जैसे कि हमने इस वाले टॉपिक में बात की थी. Weights. So 7.3 is a quite important topic because into this we're going to talk about precise system of weights. तो precise system of weights यहाँ पे जो weighting system था मतलब चीजों को अगर नापना है तोलना है तो उसके लिए कैसे हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट नीड टू चेक दैट इसका वेट कितना है. तो नाउ वी आर हैविंग थिंग्स कि हाँ हम देख सकते हैं कि इसका वेट कितना होगा, ग्राम्स में है, किलो में है. But at that time there wasn't anything. In fact they used a stone. तो इस स्टोन सिस्टम को जिससे ये वेट चेक किया जाता था this was known as a chart. ठीक है. और दूसरी बात ये है जो वेटिंग सिस्टम था इसमें जो डिनोमिनेशंस थे 2 के वो यूज किए जाते थे और बाइनरी सिस्टम था वेट के लिए यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में. Now the next topic that we will do is 8th one ancient authority. मेन थिंग इज दिस कि हम अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े कि इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए, बड़ा अच्छा जो है अर्बनाइजेशन था इनका, ड्रेनेज सिस्टम डिस्टिंक्टिव फीचर था. देन ये किसने ऑर्डर दिया था जिसके ऑर्डर
के देने पर ये सारा काम हुआ? Were there any king? Let's try to find out. Palaces and kings. Palaces and kings 8.1. No authentic evidence we are having that उस वक्त कोई kings भी हुआ करते थे. We don't have any evidence for this. Second, statue labeled priest king. अब हमें एक statue मिलता है, ठीक है, वो भी डिसफिगर्ड था, टूटा हुआ था एंड वो थोड़ा अलग था, लाइक यू नो उसके फोरहेड पे कुछ ऐसा बंधा हुआ था. यू कैन से दैट जो एंशियंट पीपल हुआ करते थे वो कुछ ऐसे ही, मोहनजोदाड़ो मूवी में देखा होगा आपने. सो लाइक उसके फोरहेड पे कुछ था. वी डोंट नो व्हाट वाज इट, बट हिस्टोरियंस ने उसको नाम दिया है प्रीस्ट किंग. अब सबसे ज्यादा इस पे हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है हिस्टोरियंस का कि भाई यहाँ पे किंग्स थे नहीं थे. एंड आउट ऑफ ऑल दीज हीटेड आर्ग्यूमेंट मोस्ट प्लॉजिबल थ्योरी और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो हमें मिलती है वो ये है कि भाई यहाँ पे किंग्स, कुछ का कहना है किंग्स थे, ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन कलेक्टिवली लोग नहीं ले सकते हैं. और कुछ का मानना था नो, देयर वर नो किंग्स, किंग्स ही नहीं थे, क्योंकि अगर किंग्स होते तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर हम देखेंगे फीचर्स अलग अलग साइड पे हमें अलग अलग मिलते हैं. स्टिल देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी में भी हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है. सो मोस्ट प्लॉजिबल थ्योरी वी कैन से दैट कम्युनिटी कलेक्टिव डिसीजन. कम्युनिटी ने कलेक्टिव डिसीजन दिए होंगे, साथ में लोग मिले होंगे, डिस्कस किया होगा लाइक व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, एंड फिर उन्होंने ये काम करवाए होंगे, लाइक जो ड्रेनेज सिस्टम वाला वर्क है एंड अदर थिंग्स. 9th द एंड ऑफ सिविलाइजेशन. अब इस सिविलाइजेशन का हम एंड करने वाले हैं इस चैप्टर में. मैंने आपको स्टार्टिंग के इस चैप्टर में आपको 3 फेजेस बताए थे. एक तो था अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा था मेच्योर हड़प्पन फेज एंड थर्ड था लेट हड़प्पन फेज. मेच्योर हड़प्पन फेज का जो वक्त है दैट इज बिटवीन 2600 BCE टू 1900 BCE. नाउ वी गेट सम एविडेंसेस. चोलिस्तान जो जगह है वहां से हमें पता चलता है कि बाय 1800 अराउंड लोगों ने वो जगह को छोड़ना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके साइट्स को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया. अब जब ये छोड़ दिया गया तो यहाँ पे एक्सपेंशन भी होता है. एक्सपेंशन होता है नए सेटलमेंट की तरफ. नए सेटलमेंट जैसे कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की तरफ जो है लोग माइग्रेट होके जाते हैं. इसके अलावा रीजंस ऑफ वाइटल डिसअपियरेंस. अचानक से इतना बड़ा सिविलाइजेशन लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी तकरीबन 5 मिलियन पॉपुलेशन नहीं होगी. तो क्या 5 मिलियन पॉपुलेशन अचानक से गायब हो गई? व्हाट वर द रीजंस? So if you see the reasons of vital disappearance, there were some natural calamities like फ्लड आई होगी, अदरवाइज डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड यूज इन्होंने ज्यादा कर लिया होगा. तो ये सब कारण दिए जाते हैं फॉर वाइटल डिसअपियरेंस. हाउएवर नो वन नोज कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. 10th one, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अभी तक तो हम सारा एंशिएंट बात कर रहे थे, क्या कैसे कौन सी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वेट ये इस्तेमाल किया करते थे. 10.1 कनिंघम्स कंफ्यूजन. सो फर्स्ट DG ऑफ ASI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम. अब वो इंडिया आया और एक चीज मैं आपको बताऊं, इतिहास में, हिस्ट्री में अगर कोई गलती भी करता है ना तो उसको याद रखा जाता है, बट वो गलती भी बड़ी होनी चाहिए. एंड अलेक्जेंडर कनिंघम ने यही किया. अलेक्जेंडर कनिंघम मेड मिस्टेक. अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. अलेक्जेंडर कनिंघम ने BCE नहीं, इसने 4th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी CE के बीच में इसको रखने की कोशिश की. और फिर जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे, बुद्धिस्ट चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट विजिट करने इंडिया आए थे, उनके जो अकाउंट्स थे ना उसका इस्तेमाल किया टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. बट उससे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे वो 4th से 6th सेंचुरी CE के टाइम पर आए थे. और वी आर टॉकिंग अबाउट BCE, वो भी कब, 2600 BCE के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो ही हैड अ सील एक्चुअली, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सील मिली थी, बट उसने उसके सिग्निफिकेंस को मिस कर दिया, क्योंकि उस सील को वो उतने पहले ना रखकर 4th सेंचुरी CE में रख के देख रहा था, इसलिए उसको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ. सो ही मेड मिस्टेक, बट वी आर रीडिंग अबाउट अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि उसने गलती की थी, वो भी बड़ी गलती की थी. 10.2 अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. जॉन मार्शल गिवन टर्म. ओके,
सो जॉन मार्शल टर्म देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और दुनिया को बताते हैं कि हमें ये सिविलाइजेशन मिला है, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी पुराना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ही वॉज ऑल्सो DG ऑफ ASI, बट अगर फर्स्ट DG पूछा जाए, मेंशन अलेक्जेंडर कनिंगम ओनली। Now there was one pattern followed to excavate the sites of Harappan civilization. R.E.M. Wheeler, who was also DG of ASI and he was DG in 1944, तो इन्होंने कहा कि वी नीड टू फॉलो स्ट्रैटियोग्राफी रादर देन डिग इट मैकेनिकली। मतलब जब जमीन को हम खोद रहे हैं, हम उसको डिग कर रहे हैं, तो यूं ही नहीं डिग करो, फॉलो द पैटर्न। अगर जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी है वो रीसेंट वन होगी, इससे नीचे वाली अगर हॉरिजॉन्टली देखें हम, इससे नीचे वाली और पुरानी होगी और उससे नीचे वाली और पुरानी होगी। सो इफ वी विल फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी में जो है हर एक लेयर का जो है एनालाइज किया जाता है इसको, ये कितनी पुरानी है, सो सच सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये जमीन है तो ये हमें सबसे पुरानी मिल जाएगी। और अगर हमें ये मिल गई तो इसकी केमिकल एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं कि आज से कितने साल पुरानी है। सो R.E.M. व्हीलर ने सजेस्ट किया कि वी नीड टू फॉलो द स्ट्रैटिग्राफी। थर्ड, न्यू साइट्स डिस्कवर। अब कई सारे नई साइट्स डिस्कवर हुई थी जिसपे कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस का इसमें हाथ रहा है। R.E.M. व्हीलर हो गए, दयाराम साहनी हो गए, माधवराव स्वरूप हो गए, दीज वर द पीपल जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकेवेट करने में मदद की थी। Now the next topic that we're gonna have is the problems of piecing together the past, and I have to write R here. Okay. So piecing together the past, what were the problems? सबसे पहली बात ये, अगर हमें पास्ट के बारे में पता लगाना था तो मटेरियल एविडेंसेस हमारे लिए बेस्ट थे। जैसे कि आप इस टॉपिक में देखिए 11.1 क्लासिफाइंग फाइंड्स। अगर जो भी हमें सामान मिले हैं इनको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते थे। एक तो था मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि अगर हमें सील मिली है, जस्ट ट्राई टू एनालाइज की यार मतलब ये ब्रॉन्ज है, ये कॉपर है, या फिर ये आयरन है, या ये अलॉय है, ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स, ये मटेरियल के बेसिस पे थी। या फिर फंक्शन मतलब उस सील का इस्तेमाल किस लिए हुआ होगा। सो दीज वर टू वेज दैट हिस्टोरियंस अडॉप्टेड टू क्लासिफाई फाइंड्स, मटेरियल एंड द सेकंड वन इज अ फंक्शन। Last topic of this chapter and as well as of this video, 11.2 is going to be प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सी द फर्स्ट पॉइंट, अनयूजुअल हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। जो भी हमें अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मिलता है, स्टैचू मिलता है, सील मिलती है और द स्ट्रक्चर जिसे समझ में नहीं आया कि यार इसका इस्तेमाल किस लिए हुआ होगा, वी कनेक्टेड इट विद अ रिलीजन, तो हो सकता है इसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो। दूसरा पॉइंट है मदर गॉडेस एंड प्रीस्ट किंग। दीज वर द थिंग्स कि हम कह सकते हैं मदर गॉडेस एंड प्रीस्ट किंग थे, तो हड़प्पन्स ने इनको वर्शिप किया होगा। और दिस ऑल्सो गिव अस द हिंट कि प्रीस्ट किंग और देयर वर सम किंग्स एंड अथॉरिटी एज वेल। थर्ड, स्ट्रक्चर, ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद रिलीजन। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जैसे कि ग्रेट बाथ, मैंने आपको बात बताई थी कि जो हमने पार्ट 2 में टॉपिक किया था। ग्रेट बाथ जो है एक रेक्टेंगुलर टैंक टाइप का था, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसके स्टेयर्स भी थी। हो सकता है इसको रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, जिस तरह से गंगा में, ठीक है, रिवर गंगा में लोग डुबकी लगाने जाते हैं, तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा। जस्ट गेसिंग, हाउएवर वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। फायर अल्टर्स, लाइक जिसमें यज्ञ होता है, वी गेट लॉट ऑफ फायर अल्टर्स, स्पेशली हमें कलिबंगा ने चोलिस्तान में जो है फायर अल्टर्स मिलते हैं। एंड थर्ड इज अ चीफ मेल डाइटी, पशुपति। अब पशुपति का जो है हमें स्टैचू मिलता है और सील्स में भी इस्तेमाल किया गया है। लाइक ही वॉज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, यू कैन से दैट, उनके चारों तरफ जो है एनिमल्स ही बैठे हुए हैं। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद ऋग्वेद। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, otherwise on my Instagram page. So I'll be adding the links of all these three because recently I started Studyship with Krati Instagram page, and on which I used to share material related to humanities stream students. So you can just follow it for enhancing your knowledge. Till the time, you make sure you have hit the like button, share this video with your friends, and subscribe Studyship with Krati too, because for now we just completed chapter 1. We are supposed to complete chapter 15. तो जब तक के लिए तो भाई
यहाँ पे स्टिक रहना ही होगा आपको। एंड या एज आई सेड दैट आई स्टार्टेड क्रैश कोर्स इन विच आई विल बी टीचिंग लाइव, तो उसके इन्फो के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, बाय।